Assalamu alaikum. Today we have a third lecture for business finance with the course code of MGT 232. We'll start with a brief introduction from our last lecture that was about the financial management, role of a financial management. Starting with a brief introduction, we discussed the agency theory, the role of the management, separation. There exists a separation between the owners and the your employees. Then we defined the agency theory, the relationship between the owners and your management. We defined that there exists a separate role of agent and principal. We defined that shareholders are the owners of the company, which are called the principal, and they hire an agent, which are basically your management or the employee, to work in the best interest of the principal. Now there exists a goal of your principal and the agent. Principal have the goal of investing the amount and getting a return on that amount, and your agent has the goal of making his personal life better in his own way. Now when there exists a separation and the differences in the goals of the agent and the principal, then we say that there exists a conflict. Now the relationship between your principal and an agent, that is the principal hiring the agent to work for the principal's best interest, this is called your agency relationship. And when we say that there exists a conflict between the goals of the principal and the agent, so the conflict is basically defined as the agency conflict. Then we define that we are going to have a better solution for this conflict. In order to remove that conflict, then we define that there is an agency cost, the cost incurred to remove the conflict between the agent and your principal. Now in order to remove that agency cost, we have to pay off some incentives. Those incentives are in the form of stock options, some perquisites, some other benefits, bonuses, and other personal benefits to the employees or the management. So this defines your agency theory, which has been developed by Jensen and Macklin, and they defined a complete set of agency relationship, agency conflict, and agency cost that exist within our modern corporation nowadays. And why this agency relationship exists? Because there exists a separation between the role of a shareholder and the role of the management. Then we define the corporate social responsibility, that how our corporations are socially responsible. They do have their ultimate goal of shareholder wealth maximization, but beside shareholder wealth maximization, they have an integrated role of being socially responsible. So organizations looking at the stakeholders, which are the customers, the employees, the general public and other suppliers, all those people who are being affected by the operations of the business, are the stakeholders of an organization or the corporation. And they, the corporation people, the management, the general employees of the organization, they focus on being socially responsible in keeping in view the stake of those stakeholders. So those shareholders keep in view the stake of the stakeholders, that how much risk they are bearing, the stakeholders, and they keep in view and save their risk as well, and save their viewpoint as well, and how much they can help them to save themselves. For example, the environment protection, there are some environment protection law where organizations have to be socially responsible, that they have to take care of all the environmental procedures, and they have to remove the pollution. Most of the corporations and factories create a lot of pollution, and that in order to remove that pollution, they go on for their for being better socially responsible, and they are more into working for making an environment a better place. This is where they get the role of socially responsible. But the ultimate goal of the firm remains the shareholder wealth maximization, जहाँ पे वो ये चीज़ अपने shareholder wealth maximization के साथ साथ इस चीज़ को भी फोकस करते हैं कि वो socially कैसे responsible हो सकते हैं.
Then we define the organization of the financial management function. Financial management function किस तरीके से डिफाइन होता है, आपके जितनी भी हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पढ़ा कि उसके क्या डिसीजंस हैं और किस तरीके से उन डिसीजंस को लेकर एम दिमाग में ये होता है कि गोल ऑफ अ फर्म क्या है, उस फर्म के गोल को दिमाग में रखते हुए 3 मेजर डिसीजंस लिए जाते हैं और एक प्रॉपर फाइनेंशियली आपकी फर्म को क्रिएट किया जाता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन जो है वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ फाइनेंस जो है वो डील कर रहा होता है। उसके अंदर उसके पास 2 किस्म के डिपार्टमेंट्स होते हैं, कंट्रोलर डिपार्टमेंट जिसमें मिनिमम रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, एंड देन वी हैव ट्रेजरर डिपार्टमेंट। द ट्रेजरर डिपार्टमेंट हैज मेजर पोर्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन, और जितनी कैश बजटिंग, कैश कैपिटल बजटिंग हो रही होती है और कितना कैश प्लानिंग हो रही होती है, कितनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, फाइनेंशियल प्लानिंग एंड ऑल दीज थिंग्स आर बीइंग इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट फंक्शन, और ये सब आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हिस्सा होता है। और प्रैक्टिकली आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन आपके ट्रेजरी डिपार्टमेंट में अप्लाई हो रही होती है। Then we define 3 different types of business environment. Business environment में हमने ये different environments, जिनके अंदर एक business environment थी, financial environment and tax environment थी। Business environment में हमने 4 types of businesses को define किया था। The first form of business was your sole proprietorship, which is very easy to form, लेकिन उसके लिए capital raise करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और उसकी unlimited liability होती है। In case of second form of business, that is your partnership. Partnership के अंदर आपकी 2 मिनिमम पार्टनर्स और मैक्सिमम आपके 20 पार्टनर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। इसका एडवांटेज ये है कि एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप इट इज वेरी इजी टू रेज कैपिटल इन पार्टनरशिप, क्योंकि उसमें ज्यादा पार्टनर्स होते हैं तो आप ज्यादा कैपिटल रेज कर सकते हो। इस पार्टनरशिप के साथ साथ जो चीज डिफाइन की गई हुई है इसके अंदर वो है आपकी लिमिटेड एंड अनलिमिटेड लाइबिलिटी, क्योंकि आपकी 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप्स होती हैं। द फर्स्ट वन इज योर जनरल लाइबिलिटी। जनरल लाइबिलिटी आ जाती है आपके जिसके अंदर आपकी अनलिमिटेड लाइबिलिटी आपके सारे के सारे पार्टनर्स के अंदर, और सारे पार्टनर्स के और सारे के सारे पार्टनर्स आपके जनरल पार्टनर्स होते हैं। एक आपकी आ जाती है लिमिटेड पार्टनरशिप। लिमिटेड पार्टनरशिप के अंदर आपका एक जनरल पार्टनर और बाकी सब लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं, और जितने भी लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं उन सब की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है टू द कंट्रीब्यूशन ऑफ देयर कैपिटल, की कितना कैपिटल उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है और कितने ज्यादा उनके लॉसेस और गेन्स होंगे। जितने लॉसेस एंड गेन्स होते हैं दैट इज जस्ट towards their according to their contribution in the capital. पार्टनरशिप में एक चीज जो कि थोड़ा सा प्रॉब्लमैटिक होती है वो यही है कि आपकी कुछ अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती हैं और कहीं पे आपकी लिमिटेड लाइबिलिटीज होती हैं। थोड़ा सा पार्टनरशिप में प्रॉब्लम है ट्रांसफर ऑफ कैपिटल का, कि आपका कैपिटल ट्रांसफर या आपकी कैपिटल ओनरशिप ट्रांसफर किस तरीके से हो सकती है। तो ओनरशिप कोई बहुत इजी तरीका नहीं होता, उसमें रिमूविंग ऑफ योर पार्टनर्स एंड गेटिंग अ पार्टनर्स एडिशनल पार्टनर इज वेरी डिफिकल्ट, उसके कुछ लीगल प्रोसीडिंग्स होते हैं। फिर आपकी एक और फॉर्म ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस आ जाता है, दैट इज योर कॉर्पोरेशन। कॉर्पोरेशंस क्या है कि कॉर्पोरेशंस आपकी डिफाइंड लीगल एंटिटीज होती हैं, जिसके अंदर ये क्लियरली डिफाइन होता है कि आपके ओनर्स और आपकी मैनेजमेंट जो है वो सेपरेट है। जितने भी ओनर्स होंगे और जितने भी आपकी मैनेजमेंट होगी वो सब उन सब का एग्जिस्ट करेंगे, उन सब का रोल सेपरेट रोल होगा। कॉर्पोरेशंस के अंदर आपकी अनलिमिटेड लाइफ होती है, आप लिमिटेड लाइबिलिटी होती है कि जितनी इन्वेस्टमेंट की है बस उससे लिमिटेड लाइबिलिटी, दे आर नॉट ऑब्लिगेटेड और नॉट अकाउंटेबल फॉर पेइंग आउट एक्स्ट्रा ऑब्लिगेशंस और डेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। दे हैव लिमिटेड लाइबिलिटी, उनकी अनलिमिटेड लाइफ होती है क्योंकि गोइंग कंसर्न कंसिडर किया जाता है। और प्लस उसके अंदर एक चीज जो इन्वॉल्व होती है वो ये है कि आपकी जो पार्टनर आपके जितने भी शेयर होल्डर्स हैं वो जितने भी ज्यादा आप चाहें, कोई लिमिटेड डिफाइंड लिमिट नहीं है, आप जितने ज्यादा शेयर होल्डर्स चाहें आपके ओनर्स हो सकते हैं। वो शेयर होल्डर्स फॉर्म करते हैं आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिफाइन वोट करके इलेक्ट करते हैं आपके प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट पे डिफाइन करता है कि वेदर ही हिमसेल्फ विल बी द सीईओ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन या फिर वो बाहर से कोई सीईओ अपना एज एन एम्प्लॉय एजेंट हायर करे। ये आपकी 3 फॉर्म्स थी। एक 4th फॉर्म ऑफ बिजनेस आती है, दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। दैट लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी में क्या है कि आपकी
लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, जो कि नाम से बता रहे हैं कि जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है। अनलिमिटेड लाइफ इसको हम अज्यूम करते हैं फॉर्म करने के लिए, लेकिन कुछ स्पेशल पर्पजेस, स्पेशल प्रोजेक्ट्स के लिए ये स्टार्ट हो सकती है लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी। लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी की लिमिटेड अनलिमिटेड लाइफ होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये बहुत ज्यादा लंबे टाइम अरसे के लिए एग्जिस्ट नहीं करती, थोड़े अरसे बाद खत्म हो जाती है। इन केस ऑफ पाकिस्तान जितने भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज हैं वो सब की सब आती हैं अंडर द लॉ ऑफ लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज। फिर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जितनी हम स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस कहते हैं उनके लिए मिनिमम पेड अप कैपिटल जो है वो 100,000 रुपीज, दैट मीन्स 1 लाख रुपीज इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। इसके भी वही टैक्सेशन का जो है इन चारों की चारों फॉर्म्स ऑफ बिजनेस का जरा डिफरेंट है। इसमें लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज में लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, लेकिन और जितनी इसका बेनिफिट और ये है कि जितने भी आप पार्टनर्स चाहें इसमें ऐड कर सकते हैं। इसकी लिमिटेड लाइफ होती है, अगर जनरली हम कहते हैं तो इसकी हम ये कहते हैं कि इसकी लाइफ जो है वो लिमिटेड होती है। जहां टैक्सेशन की बात करते हैं, टैक्स एनवायरनमेंट की बात करते हैं, वहां पे ये है कि सोल प्रोप्राइटर में सिंगल इंडिविजुअल की जितनी इनकम होती है उस सिंगल इंडिविजुअल फॉर्म के ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ता है। पार्टनरशिप के लिए हर पार्टनर्स के अपनी सिंगल पार्टनरशिप फर्म की जितना टैक्स पे बनता है वो फर्म टैक्स फॉर्म के ऊपर पे किया जाता है। जब आप कॉर्पोरेशंस की बात करते हैं तो कॉर्पोरेशंस की स्पेसिफिक टैक्स ब्रैकेट डिफाइन की जाती है हर कंट्री के अंदर बाय देयर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन। इन केस ऑफ पाकिस्तान इट्स सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो वहां पे क्लियर डिफाइन किया जाता है कि ये एक डिफाइंड सेट परसेंटेज है जो कि कॉर्पोरेशंस ने पे करनी है। तो कॉर्पोरेशंस आपके पे आउट कर देते हैं आपके जितनी भी परसेंटेज सेट की जाती है टैक्स के लिए। लेट्स सपोज अगर आपकी एग्जांपल लें तो इट्स बिटवीन 30 to 40% इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज। इन केस ऑफ पाकिस्तान इट्स 39 और 40, इट्स अराउंड अबाउट 35 to 40% फॉर द कॉर्पोरेशंस। अब फोर्थ फॉर्म जो कि लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनीज थी उसमें यही होता है कि जितने भी लिमिटेड पार्टनर्स होते हैं और उस स्पेसिफिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के ऊपर जितना टैक्स लगना है वो अकॉर्डिंग टू दैट अमाउंट टैक्स पे करते हैं। इन केस ऑफ कॉर्पोरेशन जो कि हमारा फोकस सारा इस कोर्स के अंदर कॉर्पोरेशंस के ऊपर होगा, कॉर्पोरेशंस की जितनी भी बिजनेस इनकम होती है वो सारा बिजनेस इनकम के ऊपर आपका टैक्स लगता है फॉर द कॉर्पोरेशंस। The last topic we studied was financial environment. Financial environment के अंदर हमने ये देखा था कि कैसे क्योंकि आपके जितने भी फाइनेंशियल बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट से डील करने वाले जितने लोग होते हैं वो कंटिन्यूसली दे इंटरेक्ट विद ईच अदर। वेयर डू दे इंटरेक्ट, वेयर डू दे एग्जिस्ट? दे एग्जिस्ट इन अ फाइनेंशियल मार्केट। आपकी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर एक फाइनेंशियल एनवायरनमेंट के अंदर एक फाइनेंशियल मार्केट होती है। उस फाइनेंशियल मार्केट के अंदर आपके बायर्स, आपके सेलर्स, आपके इन्वेस्टर्स, आपके सेवर्स, आपके ब्रोकर्स, ये सब एग्जिस्ट करते हैं। वो ब्रोकर्स और सेवर्स आपस में ट्रांजैक्शंस करते हैं और वो ट्रांजैक्शंस जब ऑपरेट होती हैं विद इन अ फाइनेंशियल मार्केट तो वो ऑपरेट होती हैं थ्रू अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो जितने फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं वो फॉर्म अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज इज योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो जितने भी फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज होते हैं उनके थ्रू जितने सेवर्स, इन्वेस्टर्स, बायर, सेलर्स एग्जिस्ट करते हैं और अपने ट्रांजेक्शन्स को ऑपरेशनल बनाते हैं। जब थ्रू फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज आपकी फाइनेंशियल मार्केट के अंदर ऑपरेशनल हो जाता है आपके बायर्स एंड सेलर्स की ट्रांजैक्शन, तो हम कहते हैं कि ये कंप्लीट फाइनेंशियल एनवायरनमेंट यहाँ एग्जिस्ट करती है। देन वी डिफाइंड start our lecture formally with a third lecture that is basically about the financial environment. Financial environment में मैंने define किया कि हमारी financial market होती है। But before going into detail of financial market, let's look at this thing कि what is a market. अगर मैं आपसे पूछूं let's take out paper and write down what is a market, तो आप मार्केट, आपके दिमाग में जो चीज आती है वो मार्केट क्या आती है कि आप कहीं मार्केट गए हो जहाँ पे बाइंग हो रही है, सेलिंग हो रही है, दुकानें हैं, लोग हैं, बायर्स हैं और वो भी सेलर्स भी हैं, रेडियां भी हैं आ रही हैं, एक प्रॉपर फॉर्म ऑफ बिजनेस भी है, एक प्रॉपर शॉप्स बनी हुई है, मॉल्स भी हैं, बिल्डिंग्स हैं। ये सब चीजें आपकी डिफाइन करती हैं आपके एक मार्केट को, या आपके दिमाग में एक मार्केट का इमेज बनता है। जब हम इसको फॉर्मली डिफाइन करते हैं तो मार्केट इज अ वेन्यू और अ प्लेस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज एग्जिस्ट। तो आपकी गुड्स एंड सर्विसेज, योर बायर्स एंड सेलर्स एग्जिस्ट एंड योर गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज बिटवीन योर बायर्स एंड सेलर्स। सो अ मार्केट इज अ वेन्यू और अ प्लेस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज बिटवीन योर बायर्स एंड सेलर्स। इसके अलावा जब ये मार्केट डिफाइन होगी तो लेट्स लुक एट द फाइनेंशियल मार्केट। द फाइनेंशियल मार्केट इज अ प्लेस वेयर इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस वांटिंग टू बोरो फंड्स आर ब्रॉट इन contact or brought together with those having surplus of funds. So that means we have two types of people.
The first one are your buyers and your sellers. इनके बीच में जितनी भी exchange होती है that is in the market. लेकिन जब हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करते हैं तो ये आपके बायर्स कौन बन जाते हैं? वो who want to borrow funds. They are the borrowers. And who are our sellers? Our sellers are those who have surplus of funds, and they are normally our savers or our investors. So we have those who have borrowers who need money, and we have those who have surplus of funds, and we have whenever there is a transaction or exchange of goods and services, goods या आपके फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं, ये सारे फाइनेंशियल एसेट्स जब भी एक्सचेंज इनका अकर करेगा या कोई ट्रांजैक्शन अकर करेगी between your borrower and your borrower who needs funds and those who and your savers who have surplus of funds, तो आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन होगी वो इसको हम कह देंगे ये दिस इज योर फाइनेंशियल मार्केट. So आपके borrowers are those who need funds or money, and we have those who are called our savers. Our savers have surplus of funds. Whenever there exists a exchange or a transaction between your borrowers and the surplus and the savers who have surplus of funds, we call it as a financial market. So ये सब चीज़ें आपकी कहाँ पे होती है? फाइनेंशियल मार्केट के अंदर. फाइनेंशियल मार्केट हेल्प क्या करती है कि आपके जो वो लोग जो कि जिनको फंड्स चाहिए, your borrowers, and those who have surplus of funds, your savers, इन सबको इन कॉन्टेक्ट लेकर आना क्या इसका काम है? आपके फाइनेंशियल मार्केट का. तो फाइनेंशियल मार्केट वहाँ एग्जिस्ट करेगी जहाँ पे आपके borrowers एंड sellers के बीच में ट्रांजैक्शन करेगी. और बेसिक पर्पस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स इज एफिशिएंटली एलोकेट दीज सेविंग्स टू द अल्टीमेट यूजर्स. क्या है कि यू हैव योर पीपल हु सेवर्स हु हैव सरप्लस ऑफ फंड्स. वी हैव पीपल who have surplus of funds. These savers, when allocate their funds to the borrowers who need funds, then we call that it is an efficient allocation of funds. So efficient allocation of funds कैसे होगी कि आपके savers से ultimate users के पास आपके funds चले जाएं. Then we have different types of financial market. This is what we define as market and your financial market, and then we define there are different financial markets. Now different types of financial market mean the first one is your physical asset market. As its name indicates, the physical asset market. That means we'll have different physical assets. As I have told you before, write down. You have a paper and you have a pen. Don't lose your concentration right now. Now write down there what are your physical assets. How we define the physical assets of a business, of an individual or general public. You are looking at the slides. These are your physical assets. You are looking at your pen, the paper, the table, the chair you are sitting as, or on your bed, or anywhere you are sitting is all your physical assets. Your cell phone, you don't look at your cell phone right now. This is where you lose your concentration. So your cell phone is your physical asset. Your clothes, anything that you eat is your physical asset. So the market that exists for your for the exchange of your physical assets is called your physical asset market. So आप किसी भी जनरल मार्केट में चले जाते हैं, आज अपने लिए कुछ कपड़े खरीदने के लिए, that is your physical asset market. अपने खाने खरीदने के लिए जाते हैं, that is your physical asset market. Your restaurant is your physical asset market. अपना सेल फोन खरीदते हैं, अपने सेल फोन के अलावा अपना लैपटॉप खरीदते हैं, अपने और चीज़ें खरीदते हैं, जो स्क्रीन जिसके कंप्यूटर स्क्रीन या जो लैपटॉप स्क्रीन जिसके ऊपर आप इस वक्त देख रहे हैं अपने पूरी वीडियो, that is your physical asset market. So ये सब चीज़ें जो आप खरीदते हो, लेते हो, ये सब आपकी physical asset market है. और ये physical asset market exist करती है for the exchange or the transaction of all the physical assets and for physical goods and services.
सो कोई भी फिजिकल एसेट की एक्सचेंज होगा वो सब आपके फिजिकल एसेट मार्केट के अंदर आ जाएंगे. फिजिकल एसेट मार्केट के कंपैरिजन में वी हैव फाइनेंशियल एसेट मार्केट. फाइनेंशियल एसेट मार्केट अ मार्केट स्पेसिफिकली फॉर द फाइनेंशियल एसेट्स एंड देयर एक्सचेंज एंड ट्रांसफर. अब फिजिकल एसेट्स हमारे कौन कौन से होते हैं? अगर आप डिफाइन करें तो किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल एसेट्स कौन कौन से होंगे? लेट्स डिफाइन देम, राइट देम डाउन. किसी भी बिजनेस के फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं उसके बॉन्ड्स, उसके स्टॉक्स. आप किसी भी मार्केट में जाके स्टॉक्स खरीदेंगे, बॉन्ड्स खरीदेंगे, मार्केटेबल सिक्योरिटीज खरीदेंगे, या किसी भी किस्म का सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, या आपके बैंक से जो आपको डिपॉजिट स्लिप मिलती है, दैट इज योर फाइनेंशियल एसेट्स, दैट इज योर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट. तो आपके फाइनेंशियल एसेट्स कैसे डिफाइन होते हैं? अ मार्केट स्पेसिफिकली फॉर द फाइनेंशियल एसेट्स एंड देयर एक्सचेंज एंड ट्रांसफर. सो मार्केट जहाँ पे आपके ट्रांजैक्शन होगी या एक्सचेंज अकर करेगा फॉर द फाइनेंशियल, फॉर द योर फिजिकल एसेट्स, सॉरी फॉर योर फाइनेंशियल एसेट्स, दैट इज बेसिकली योर फाइनेंशियल एसेट मार्केट. इसमें एग्जांपल आपकी यही है, बॉन्ड्स, स्टॉक, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट, स्वैप्स एक्सेट्रा, बहुत सारी और सारी एग्जांपल है. और योर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड द ट्रांजैक्शन बीइंग अकर is what we said exist in your financial assets market. Then we have types of financial markets. Other types of financial markets, out of physical and financial, we have money market. Whenever we talk about the money market हमेशा आपके short term highly liquid assets के लिए होता है. यहाँ पे हमें थोड़ा सा define ये करना है कि आपके highly liquid short term assets कौन कौन से होते हैं. We have three forms of terms. The first one is your short term, your medium term, and your long term. For your short term, कितना एग्जिस्ट करता है शॉर्ट टर्म के अंदर? शॉर्ट टर्म आपका हमेशा होता है विद इन 1 year, 6 months to, और वी से विद इन 1 year. सो शॉर्ट टर्म की जब भी बात की जाएगी, सो ऑल दोज ट्रांजेक्शंस और एनीथिंग दैट एग्जिस्ट और दैट अकर विद इन अ ईयर, विद इन 6 months, एनीथिंग दैट इज विद इन अ ईयर, 12 months से बाहर वो नहीं जाता, दैट इज योर शॉर्ट टर्म. Now when we talk about the medium term में आपके आ जाते हैं 1 year से 2-3 years तक, और even sometime few books or few authors include it as 5 years. So ये सब आपके medium term के अंदर आ जाते हैं. जब हम long term की बात करते हैं तो long term के अंदर anything that is more than 5 years. This is for your long term time period. So कोई भी ऐसा लोन जो कि we are getting a loan that is for 10 years, that means it's a long term loan. Any loan we are getting for 2 years, that is your medium term loans, and any loan we are getting for 6 months, कि 6 months के लिए short term loan लेना है तो वो आपका short term loan होता है, बहुत छोटे time period के अंदर आप उसको pay out कर देते हो. So whenever we talk about money market, so we are talking about basically what are short term and liquid assets. Now what are the liquid assets? This is very important to define कि what are our liquid assets. Now look at this. Our liquid assets, if you know, write it down on your paper. Our liquid assets are our current assets for the business, most importantly cash. So any asset which is easily convertible to cash. So any asset that is easily convertible to cash is your liquid asset. So this is what we define in a money market, that a market for short-term highly liquid assets. So any asset which is highly liquid, that means which can easily be converted into cash, and any asset which is short-term as well. So this is what we define a market for a short-term highly liquid assets. अगर आप बात करें कि आपके मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं, तो वी हैव ट्रेजरी बिल्स. जब भी हम ट्रेजरी की बात करेंगे, दैट मीन्स एनीथिंग दैट इज बीइंग ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट और दैट इज बीइंग इशूड बाय द गवर्नमेंट. तो कहीं पे भी हम बिजनेस फाइनेंस के कोर्स में जब भी बात करेंगे
ट्रेजरी की, दैट इज योर गवर्नमेंट इशूड बाय गवर्नमेंट, एनीथिंग दैट इज इशूड बाय गवर्नमेंट। तो ट्रेजरी बिल्स जो है वो नॉर्मली उनकी जो शॉर्ट टर्म पीरियड होता है उनका 6 मंथ्स का होता है। 3 मंथ्स के लिए इशू किए जाते हैं, 6 मंथ्स के लिए, और थोड़ा सा उससे ज्यादा 7-8 मंथ्स के लिए, बट नॉर्मली इट्स बिटवीन, इट्स फॉर 3 मंथ्स एंड 6 मंथ्स। तो जितने भी आपके ट्रेजरी बिल्स हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए। अब ट्रेजरी बिल्स अगर मैंने खरीदा हुआ है, मुझे पता है वो शॉर्ट टर्म है, और वो क्योंकि गवर्नमेंट ने इशू किया गया है तो दे आर सिक्योर। तो मैं क्या जाके, लेट्स सपोज इफ आई वांट मनी और मैंने 3 मंथ्स के लिए खरीदा हुआ है, आज मैं खरीदती हूँ, सपोज जनवरी में खरीदा गया है, और इसको डिफाइन ये किया जाता है कि फरवरी तक, जनवरी फरवरी मार्च तक जो है हमने इस ट्रेजरी बिल को खरीदा, और मार्च के बाद आपको इसकी पेमेंट मिलेगी, कुछ इसके ऊपर रिटर्न मिलेगा इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर। मैंने ट्रेजरी बिल खरीदा जनवरी में, फरवरी में जाके मुझे पैसों की जरूरत है, मैं वो ट्रेजरी बिल जाके किसी और को बेचूं तो मेरे लिए बहुत ईजी होगा बेचना। उसका रीजन क्या है कि ट्रेजरी बिल है, गवर्नमेंट ने इशू किया हुआ है, गवर्नमेंट ने बैक किया हुआ है, वो सिक्योर्ड है, प्लस ये भी पता है कि उसकी शॉर्ट टर्म है, मार्च के बाद उसकी पेमेंट हो जानी है। तो वो जो शॉर्ट टर्म वाला बेस और प्लस गवर्नमेंट वाला जो एक इसके अंदर कॉन्सेप्ट है, वो इसको बहुत लिक्विड बना देता है। तो आप बहुत इजीली कन्वर्ट कर सकते हो, कोई भी आपसे ये बहुत इजीली खरीदना चाहेगा आपके ट्रेजरी बिल्स, और ट्रेजरी बिल्स के लिए मार्केट एग्जिस्ट करके आपके मनी मार्केट, वहां जाओ और बेच दो। सिमिलरली वी हैव कमर्शियल पेपर जो कि बैंक इशू करता है, डिपॉजिट, सर्टिफिकेट्स ऑफ डिपॉजिट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज जो कि नॉर्मली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिजनेसेस के लिए यूज होते हैं, रीपर्चेज एग्रीमेंट्स, ये सब आपके कुछ चीजें जो है वो बैंक से एग्जिस्ट करती हैं और आपके कुछ डिफरेंट बिजनेसेस में एग्जिस्ट करती हैं। ये सब चीजें आपके मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं। दीज मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स आर बीइंग ट्रेडेड इन अ मनी मार्केट। अब आपकी मनी मार्केट की एग्जांपल कौन सी है? आपकी लंदन मनी मार्केट, your London money market is one of the best example of the money market. Then we have Tokyo में एक money market exist करती है for Japan, जहाँ for the money market instruments। तो वो सब वो मार्केट जो कि specifically for your money market instruments होती है, उसको हम money market कह देते हैं, जैसे कि लंदन मनी मार्केट। इसका बेसिक क्या है? शॉर्ट टर्म एंड हाईली लिक्विड एसेट्स के लिए जो भी मार्केट एग्जिस्ट करेगी, दैट इज योर मनी मार्केट। द सेकेंड वन वी हैव इज योर कैपिटल मार्केट। Capital market is the one which help us in raising our capital, our new capital, raising our new capital, plus it is for the trading of your outstanding shares as well. So a market in which individuals and institutions trade their financial instruments or their financial securities, and this type of market is composed of both primary and secondary markets, plus आपके जितने भी public and private market की transactions हैं वो capital market में होती हैं, उनकी funds transfer capital market में होती हैं, आपकी जितनी primary and secondary market के transaction है वो आपकी capital market में होती हैं। The best example of your capital market is your example is your stock exchange, your secondary market. Beside that your general market जिसके अंदर आप कोई भी किसी भी तरीके से अपना कैपिटल को रेज कर सको, दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कैपिटल मार्केट। एक चीज, जितने भी हम टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट पढ़ेंगे उनके अंदर ये बहुत जरूरी है इस चीज को देखना कि आपके जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं वो सारी की सारी ओवरलैपिंग, उनके रोल ओवरलैप करते हैं। जैसे मैं अभी अगर ये डिफाइन कर रही हूँ कि वी हैव कैपिटल मार्केट, तो कैपिटल मार्केट के अंदर ही आपकी प्राइमरी, सेकेंडरी, पब्लिक एंड प्राइवेट मार्केट भी एग्जिस्ट करती है, जो कि मैंने आगे नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ानी है आपको। तो वो आपकी पब्लिक प्राइवेट मार्केट भी इसी कैपिटल मार्केट के अंदर एग्जिस्ट करती है। कैपिटल मार्केट का बेसिक रोल है जिसके अंदर बाकी 4 मार्केट्स एग्जिस्ट करती हैं, उनके सेपरेट रोल हैं। तो ये जो भी इसी तरह की आपकी डिफाइंड टर्म्स होंगी वो सब की सब डिफाइंड है, वो सारी की सारी आपकी ओवरलैप्ड फाइनेंशियल मार्केट्स हैं। कैपिटल मार्केट जितनी ओवरलैप, क्योंकि हम बात करते हैं कि ओवरलैपिंग की, तो इसका मतलब ये है कि जब मैं एक डिफाइन कर रही होंगी तो दूसरी उसके अंदर मिक्सड अप होगी, एक के अंदर दूसरी के कुछ रोल्स मिक्सड अप होंगे और ये सारी सारी ओवरलैप करती हैं और सारी हो सकता है किसी एक ही जगह एग्जिस्ट कर रही होंगी, जैसे कि कैपिटल मार्केट के अंदर आपकी 3-4 एग्जिस्ट करती हैं मार्केट्स। नाउ लेट्स लुक एट द प्राइमरी मार्केट वी हैव। The primary market is a market for raising your new capital. That means कि for example मैं as a new organization या as an old organization कुछ new capital मुझे चाहिए और मैंने आपको define किए थे sources of finance. Let's look at this thing for a while. We have 2 different sources of finance. We have debt and we have इक्विटी फाइनेंसिंग। डेट के लिए तो सिंपल हो गया जी, हमने लोन लेना है, किसी भी और मार्केट के अंदर से आप लोन ले सकते हो। इक्विटी मार्केट में
या लोन लोगे या बॉन्ड्स इशू करेंगे। इक्विटी मार्केट के अंदर आपकी क्या आ जाती है, आप फाइनेंसिंग करते हो, फाइनेंसिंग थ्रू योर जनरल पब्लिक। सो जनरल पब्लिक के थ्रू आप अपनी फाइनेंसिंग करते हो, दैट मीन्स आप न्यू कैपिटल रेज करते हो, आप अपने जितने भी फंड्स हैं, फंड्स या अपना कैपिटल जो है वो कहीं और से लेकर आते हो। अब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में हमारे पास डेट है एंड हमारे पास इक्विटी है। आपकी जब डेट की बात करते हैं तो डेट जो है वो आपके लोन्स है, या तो आप लोन ले लो, सिंपल बैंक से लोन ले लो। दूसरा आप क्या करते हो कि अपना कैपिटल रेज कर सकते हो बाय इशूइंग योर बॉन्ड्स। सो आपका कैपिटल रेज होता है आपके बॉन्ड्स इश्यू करने से, तो एक तरीका ये है। दूसरा तरीका क्या, आपके इक्विटी फाइनेंसिंग से। जब हम मार्केट, प्राइमरी मार्केट की बात करते हैं तो बेसिकली हम बॉन्ड्स की भी बात कर रहे होते हैं, पर ज्यादा फोकस हमारा इक्विटी मार्केट के ऊपर होता है। अब इक्विटी मार्केट के अंदर कुछ चीजें हम यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से कंपनीज जो है वो अपना शेयर्स इशू करते हैं और कैपिटल रेज करते हैं। व्हेनेवर वी टॉक अबाउट कैपिटल रेजिंग योर न्यू कैपिटल, तो वो आपकी एक न्यू ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है और एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है। लेट्स लुक एट कि अगर न्यू ऑर्गेनाइजेशन होगी तो वो अपने किस तरीके से शेयर्स इशू करेंगे। लेट्स सपोज इफ आई एम अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, मेरा अपना बिजनेस स्टार्ट किया है मैंने, जैसे पहले एग्जांपल आपको देती रही हूँ पिछले लेक्चर्स में जिम का। मैंने अपना एक जिम स्टार्ट किया है, उस जिम के अंदर मेरे पास रजिस्टर्ड बिजनेस था। मैंने लार्ज कॉर्पोरेशन बनानी है जिसने लार्ज सेट ऑफ सिटीज, डिफरेंट सिटीज के अंदर डिफरेंट जिम्स जो है वो बनाने हैं, उनके डिफरेंट जगह पे उनकी डिफरेंट ब्रांचेस होंगी। अब मैंने उसके लिए उसको रजिस्टर्ड बिजनेस किया। मुझे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने ये अलाउ किया है कि मैं 500,000 शेयर्स, मेरी कैपेबिलिटी देखने के बाद कि मैंने न्यू कैपिटल रेज करना है, मेरा इतना ऑप्टिमल फर्म साइज है, इतनी ये हेडक्वार्टर्स होगा, ये जगह डिफाइंड होगी, इतने लोग होंगे, इतना मुझे कैपिटल चाहिए, मेरी प्लानिंग देखने के बाद उसने मुझे अलाउ ये किया है कि मैं 500,000 शेयर्स इशू कर सकती हूँ। अब उसमें अलाउड मुझे है 500,000 शेयर्स इशू करना। इस वक्त जो मुझे अमाउंट चाहिए है वो मुझे ये चाहिए कि जी मेरे पास इस वक्त 2 करोड़ रुपया हो जाए। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं 200,000 शेयर्स जो है वो इशू करती हूँ एट ₹10 पर शेयर। पर शेयर मेरे पास इशूड कैपिटल कितना है, ऑथराइज्ड 500,000 शेयर्स में ऑथराइज्ड है कि मैं एज बिजनेस, जिम बिजनेस जो स्टार्ट कर रही हूँ, लेट्स सपोज एबीसी जिम बिजनेस है जिसके अंदर मैं 500,000 शेयर्स इशू कर सकती हूँ। लेकिन मुझे इस वक्त कितने चाहिए, 2 करोड़ रुपीस। तो मैं क्या करती हूँ, 20,000 रुपीज मुझे 100,000 रुपीज मुझे चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ, 200,000 शेयर्स इशू करती हूँ एट ₹10। तो दैट वुड मेक 2 मिलियन रुपीज। 2 मिलियन रुपीज इस वक्त मैं आज अपने इशू कर सकूंगी, शेयर रेज कर सकूंगी कैपिटल बाय शेयरिंग माय 200,000 शेयर्स। जो रिमेनिंग कैपिटल है वो कितना हो गया, इसका मतलब है रिमेनिंग शेयर्स हमारे जितने बच के 300,000, ये 300,000 शेयर्स अभी मेरे पास रिमेनिंग है जो कि मैं फिर भी इशू कर सकती हूँ। ना सपोज मैंने बिजनेस स्टार्ट कर दिया, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद डिफाइन मैंने ये किया जी 200,000 शेयर्स मैं इशू कर रही हूँ। दिस इज योर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसको हम आईपीओ कहते हैं। सो योर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग मींस दैट रेजिंग योर न्यू कैपिटल फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। सो व्हेनेवर ऑर्गेनाइजेशंस इशू कैपिटल फॉर द फर्स्ट टाइम, this is your initial public offering. And whenever we talk about second public offering, this is your initial public offering कि जिसके अंदर पहली दफा में न्यू कैपिटल रेज किया गया और for the very first time, this is your initial public offering. When we talk about the secondary public offering, तो ये जो मेरे पास रिमेनिंग थे, लेट्स सपोज जी मेरे बिजनेस स्टार्ट किया, मेरे पास 200,000, दैट मीन्स 2 मिलियन रुपीज मेरे पास आ गए हैं। इन 2 मिलियन रुपीज को मैंने इन्वेस्ट किया, अपना बिजनेस सेटअप कर दिया। अब मैंने लेट्स सपोज अपने 5 सिटीज में अपने जिम की ब्रांचेस स्टार्ट कर दिए। अब मेरा बिजनेस एक्सपेंड करने का मूड है और बिजनेस एक्सपेंड करने के बाद मेरे पास आता ये है कि मैंने सपोज मैंने 3 और सिटीज के अंदर जो है अपने जिम्स जो है वो और लगाने, 3 और सिटीज में जिम लगाने के लिए लेट्स सपोज मुझे 1 करोड़ रुपया और चाहिए।
1 करोड़ रुपया और जाने के लिए मुझे जाहिर बात है कुछ सोर्सेज ऑफ फाइनेंस को देखना पड़ेगा। एक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस तो मेरे पास है जी डेट, एक सोर्सेज ऑफ फाइनेंस मेरे पास इक्विटी। डेट में मैं क्या करती हूँ कि डेट में मेरे बॉन्ड्स इश्यू किए जा सकते हैं, बैंक लोन लिया जा सकता है, लेकिन हमारी एक रेशो होती है 40:60, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि 40:60 की जो डिफाइंड चीज है, मुझे 40:60 को एग्जिस्ट करना है, मुझे 40:60 को क्रॉस नहीं करना। द लिमिट इफ क्रॉस बिटवीन 50:50, दैट मीन्स कि 50% ऑफ द बिजनेस इज ओन्ड बाय द डेट होल्डर्स, आपके बैंक्स ने या आपके बॉन्ड होल्डर्स ने करता है, और बाकी ओनरशिप आपकी अपनी है। तो आप क्या करते हो कि 40 इज योर थ्रेशहोल्ड, इससे ऊपर गए तो इसका मतलब है कि यू आर ऑन अ रिस्क लेवल। तो 40:60 की आप जो है डेट इक्विटी रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो आप जो है वो 40:60 की एग्जिस्ट करते हो। नाउ लेट्स सपोज कि मैंने 40% डेट ऑलरेडी ले चुकी हूँ, अब मुझे और कैपिटल चाहिए। और कैपिटल इसका मतलब है मेरे पास सिर्फ इक्विटी का ऑप्शन है कि मैं इक्विटी फाइनेंसिंग करूँ। इक्विटी फाइनेंसिंग करने के लिए मैं ऑलरेडी कितने 200,000 शेयर्स इशू कर चुकी हूँ, अब मुझे 300,000 शेयर्स और इशू कर सकती हूँ। लेकिन मुझे कितनी अमाउंट चाहिए, मुझे चाहिए है 1 मिलियन रुपीस और चाहिए है मुझे। इस 1 मिलियन रुपीस के लिए अगर मैं इसमें से जो रिमेनिंग कैपिटल है उसमें से मैं 100,000 शेयर्स इशू करूं एट ₹10, दैट मीन्स के दैट वुड फॉर्म 1 मिलियन रुपीस फॉर मी। तो ये जो डिसीजन मैंने सबसे पहले किया था कि जी मुझे 200,000 शेयर्स चाहिए, 200,000 शेयर्स मैंने इशू किए एंड गेटिंग 2 करोड़ रुपीस, दैट फॉर्म आईपीओ, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जो कि मैंने फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अपने शेयर्स इशू किए थे। मैं दोबारा से मुझे फाइनेंसिंग, इक्विटी फाइनेंसिंग चाहिए, मैं दोबारा मार्केट जाती हूँ, मैं अपने 100,000 शेयर्स इशू करती हूँ एट ₹10 और 1 करोड़ रुपीस दोबारा से मेरे पास आ जाता है। ये जो 1 करोड़ रुपीस मेरे पास दोबारा आया है for the second time, this is your second public offering. Similarly, it continues to your third public offering, fourth public offering, that depends on your organization or your company. सारा कंपनी पे डिपेंड करता है या कॉर्पोरेशन में वो कितनी दफा जनरल पब्लिक में जाके अपने शेयर्स को इशू करेगी या जितनी दफा अपने न्यू कैपिटल रेज करेगी थ्रू जनरल पब्लिक। सो प्राइमरी मार्केट इज अ मार्केट for issuing your for raising your new capital, for issuing your shares. Whenever you issue your shares or raise your new capital for the very first time, it is your initial public offering, and whenever you raise issue new capital for the second time, this is called second public offering, and similarly it continues to the limit to what the general public issue corporations issue their capital. For example, corporation Microsoft the first time बना, Microsoft corporation ने पहली दफा जब अपने shares issue किए तो that was an initial public offering. आज अगर corporation दोबारा ये कहते हैं, Microsoft corporation ये कहते हैं कि हमें दोबारा से equity financing करनी है और हमें कुछ पैसे चाहिए for new project, तो हमने जनरल पब्लिक को करना है और हम नए शेयर्स इशू करने हैं। जो न्यू शेयर्स इशू किए जाते हैं for the second time, this is your second public offering. Now let's look at this another type of market. This is your secondary market. Now market for already existing and outstanding share is your secondary market. Secondary market में जब भी हम outstanding shares की बात करते हैं तो outstanding shares आपके वो shares हैं जो कि already market में issue हो चुके हैं। मैं शेयर्स खरीदना चाहती हूँ किसी भी कंपनी के, किसी और बंदे ने ऑलरेडी खरीदे, में उससे मैंने लिए और मेरे पास आके मैंने खरीद लिए वो शेयर्स। वो जो मैंने दोबारा से खरीदे हैं वो सेकेंडरी मार्केट में खरीदे हैं और वो एक सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन होगी। तो मार्केट फॉर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंड आउटस्टैंडिंग शेयर इज योर सेकेंडरी मार्केट. Best examples of your secondary market is your stock exchange. Your Karachi Stock Exchange, your London Stock Exchange, your New York Stock Exchange are the best examples of your secondary market. Now let's have a brief overview of your stock exchanges because secondary market आपकी थोड़ी सी important है और आपके लिए exist करती है आपकी जनरल पब्लिक के लिए. Now उसके अंदर आपकी पहली जो मार्केट एग्जिस्ट करती है सेकेंडरी मार्केट के अंदर जो थोड़ी सी उसकी बेसिक टाइप्स हैं, तो देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ योर स्टॉक एक्सचेंजेस एंड स्टॉक एक्सचेंज इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट काइंड ऑफ योर सेकेंडरी मार्केट टाइप ऑफ योर और एग्जांपल ऑफ योर सेकेंडरी मार्केट. जो दो टाइप्स हैं उनमें फर्स्ट वन इज योर फिजिकल लोकेशन मार्केट एंड सेकंड वन इज योर इलेक्ट्रॉनिक डीलर बेस्ड मार्केट. द फिजिकल लोकेशन मार्केट है, फिजिकल लोकेशन मार्केट या फिजिकल लोकेशन एक्सचेंजेस है. आपकी फिजिकल लोकेशन एक्सचेंज कैसे एग्जिस्ट करती है? आपकी फिजिकल लोकेशन एक्सचेंज इज
जो आप जनरल सी स्टॉक एक्सचेंज, आप अभी जाओ, अगर मैं आपको कहूँ कि इमेजिन करो स्टॉक एक्सचेंज, तो आप कैसे करेंगे? आपने टीवी पे भी देखा होगा कैसे होती है स्टॉक एक्सचेंजेस। एक तरफ से लोग ऑक्शन कर रहे होते हैं, दूसरी तरफ से शेयर्स हो रहा होता है, बड़ी सी मार्केट बनी होती है, बड़े बड़े स्क्रीन्स लगी होती है, उन सब के ऊपर कुछ ना कुछ अमाउंट्स लिखी हुई आ रही होती है, कुछ ग्रीन सिग्नल्स, रेड सिग्नल, ग्रीन अप, रेड डाउन, और डिफरेंट कंपनीज के नाम लिखे होते हैं, और किस्म के लोग होते हैं, ढेर और शोर मचा होता है। दिस इज योर फिजिकल लोकेशन एक्सचेंज, आपकी फिजिकली कहीं एग्जिस्ट करती है। तो जब भी हम फिजिकल लोकेशन मार्केट की बात करेंगे, ये वो मार्केट है जिसका कोई फिजिकल लोकेशन है, कोई बिल्डिंग है जिसके अंदर ये एग्जिस्ट करती है, जैसे कि योर कराची स्टॉक एक्सचेंज या योर इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज। अब हम बात करते हैं आपकी इलेक्ट्रॉनिक डीलर बेस्ड मार्केट, क्योंकि सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, सब कुछ वर्चुअली हो रहा है, जैसे कि दिस इज योर वर्चुअल लेक्चर। इसी तरीके से आपकी फिजिकल मार्केट से मूव कर रहे हैं आपके वर्चुअल इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स की तरफ। वो मार्केट्स जो कि इलेक्ट्रॉनिकली डील करती हैं, उनकी सारा का सारा इंटरनेट बेस्ड होता है, सारा वर्चुअली एग्जिस्ट करते हैं उनके सिस्टम, उनके अंदर आपके बायर्स एंड सेलर्स आराम से खरीद सकते हैं, आपके शेयर्स बाइंग एंड सेलिंग कर सकते हैं, आपके ब्रोकर्स के अकाउंट, आपका अपना अकाउंट ऑल वर्चुअली एग्जिस्ट करता है। थोड़ा सा देख लेते हैं कि फिजिकल लोकेशन स्टॉक एक्सचेंज एंड इलेक्ट्रॉनिक डीलर बेस्ड मार्केट्स में डिफरेंसेस क्या हैं। आपकी जो फिजिकल लोकेशन मार्केट है उसको हम ऑक्शन मार्केट भी कहते हैं। और ऑक्शन मार्केट हम क्यों कहते हैं? इसलिए क्योंकि नॉर्मली उस पर स्पेकुलेशन और ऑक्शन किया जाता है कि जी ये शेयर ऐसा हो जाए। जैसे कि अगर इफ यू कैन लुक एट इट, यू हैव अ पिक्चर ऑफ दिस इज योर पिक्चर ऑफ योर फिजिकल लोकेशन मार्केट, जो कि स्टॉक एक्सचेंज है, जिसमें हम देख सकते हैं कि लोग फोनों पे बात कर रहे हैं, डिफरेंट आपकी स्क्रीन्स लगी हुई है, और ये जितनी स्क्रीन्स और फोनों पे लोग बात कर रहे हैं, ये सब ये फिजिकल लोकेशन मार्केट की। यहाँ पे ऑक्शन हो रहा होता है, जो कि पहला पुराना तरीका था कि शेयर आता था, शेयर प्राइस इतनी है जी, इस शेयर प्राइस के ऊपर इतना लगा दे, इस शेयर प्राइस के ऊपर इतना लगा दे, इतनी अमाउंट ऑफ शेयर्स, इसकी इतनी प्राइस इंक्रीज, इतना प्राइस डिक्रीज होना चाहिए, ये सारी की सारी अमाउंट्स आपकी डिफाइन की जाती है ऑक्शन मार्केट पे, और वो फिजिकल लोकेशन मार्केट के अंदर होता है। ऑक्शन मार्केट के साथ अब हम इलेक्ट्रॉनिक डीलर बेस्ड मार्केट की बात करते हैं, तो हम उसको डीलर मार्केट कहते हैं, जो कि सारा कुछ इलेक्ट्रॉनिकली डील कर रहे होते हैं। आपकी इलेक्ट्रॉनिक डीलर बेस्ड मार्केट को हम OTC भी कहते हैं, दैट इज ओवर द काउंटर मार्केट, एंड दिस इज योर शॉर्ट असाइनमेंट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर कि आप फाइंड आउट करें कि व्हाट इज योर ओवर द काउंटर मार्केट। डू सर्च इट ऑन द इंटरनेट, ओवर द काउंटर मार्केट क्या होती है और इसकी एग्जांपल्स ढूंढ कर आप लोगों ने लेकर आनी है। आपके ऑक्शन मार्केट है, ऑक्शन मार्केट को हम जब फिजिकल लोकेशन मार्केट कह रहे हैं तो हम सिंपल एक्सचेंज बोल देते हैं। तो जब भी हम स्टॉक एक्सचेंज, सिंपल एक्सचेंज बात करेंगे, दैट इज अबाउट द फिजिकल लोकेशन मार्केट। लेकिन जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक डीलर बेस्ड मार्केट की बात करते हैं तो हम उसको नॉर्मली ओवर द काउंटर मार्केट कहते हैं। बेस्ट एग्जांपल इसकी है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज वर्सेस नैस्डैक। न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज आपकी फिजिकल लोकेशन मार्केट है, और आपकी नैस्डैक, दैट इज योर नेशनल एसोसिएशन फॉर ऑफ सिक्योरिटी डीलर बेस्ड ऑटोमेटेड कोटेशंस। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज या सिक्योरिटी डीलर बेस्ड ऑटोमेटेड कोटेशंस, ये आपकी नैस्डैक की एब्रीविएशन है। नैस्डैक आपकी सबसे फर्स्ट एंड लार्जेस्ट इलेक्ट्रॉनिक डीलर बेस्ड मार्केट है, जो कि इलेक्ट्रॉनिकली डील करती है। देयर इज अ सॉफ्टवेयर फॉर नैस्डैक दैट एग्जिस्ट ऑनलाइन। आप नैस्डैक की वेबसाइट पे जा सकते हो, वहां पे देख सकते हो। ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के बाद ही इसका कॉन्सेप्ट आया था, और वो इलेक्ट्रॉनिकली एग्जिस्ट करती है, जहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, उसमें आप अपना अकाउंट बना सकते हो। अकाउंट बनाने के बाद आपके ब्रोकर्स के अकाउंट होते हैं, वहां पे आप जो भी शेयर्स खरीदना चाहो उनकी बाइंग एंड सेलिंग की प्राइसेस आ रही होती है। इतने पे आस्क प्राइस है, इतना बाइंग प्राइस है, इतनी सेलिंग प्राइस है। आस्क बाइंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, आस्क प्राइस, ये सब प्राइसेस उसमें डिफाइंड होती है। क्या चीज़ कितना ज़्यादा उसमें, कितनी ज़्यादा सेलिंग हो रही है, ग्रीन सिग्नल, कितनी ज़्यादा सप्लाई उसकी ज़्यादा हो रही है, कौन से लोग उसको बेचना ज़्यादा बेच रहे हैं, कौन से लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं। तो यहाँ पे कितना ग्रीन, कितना रेड, जितना पोर्शन आ रहा है, ये सब आपके डिफाइंड होता है कि कितना ग्रीन और कितना रेड पोर्शन आ रहा होता है। इसके बाद आपके कुछ अब जब हम बात कर रहे होते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डीलर बेस्ड मार्केट और फिजिकल लोकेशन मार्केट होती है, लेकिन अब क्या हो गया कि जितनी अब इस वक्त अगर आप इस वक्त कराची स्टॉक एक्सचेंज चले जाएं, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज चले जाएं, तो आपको वो मार्केट नजर नहीं आएगी जो कि हम फिजिकल लोकेशन मार्केट, या जो इस वक्त तस्वीर में आप देख सकते हैं यहाँ पे, वो फिजिकल लोकेशन मार्केट वैसी नहीं है।
वहाँ पे अब बिल्कुल खामोशी होती है, वहाँ पे बिल्कुल ऐसा शोर नहीं होता। हाँ, वहाँ पे टेलीफोन जरूर होते हैं, आपके डिफरेंट ब्रोकरेज हाउसेज हैं, उन ब्रोकरेज हाउसेज डील कर रहे होते हैं आपके डिफरेंट अकाउंट होल्डर से, वो अकाउंट होल्डर जो कि आपके इन्वेस्टर्स हैं। आपकी बैंक इन सेटिंग सारी वहाँ होती है, वहाँ स्क्रीन लगी होती है, वहाँ पे पूरा प्रोसेस हो रहा होता है, लेकिन इस तरह का शोर, इस तरह की फोन कॉल्स ये नहीं हो रहा था। हाँ, फोन कॉल्स होती हैं, एक बंदा बैठा होता है, 2-4 और लोग होते हैं जो कि डील कर रहे होते हैं विद इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। अब सारा कुछ आपका डिफरेंस जो है वो नैरो डाउन हो रहा है, क्योंकि इंटरनेट और वर्चुअल वर्ल्ड जो है वो जरा ज्यादा स्ट्रेंथन हो रहा है, तो आपकी फिजिकल लोकेशन मार्केट भी चेंज होती जा रही है आपकी इलेक्ट्रॉनिक डीलर बेस्ड मार्केट के अंदर, लेकिन स्टिल इट फिजिकली एग्जिस्ट एंड इट हैज अ बिल्डिंग, सो वी कॉल इट अ फिजिकल लोकेशन मार्केट। लेट्स लुक एट अनदर टाइप्स ऑफ मार्केट। ये जो मैंने एग्जांपल स्टॉक एक्सचेंज की बात की है बीच में, ये सारी की सारी आपकी एग्जांपल है आपकी सिंपल सेकेंडरी मार्केट की। प्राइमरी सेकेंडरी मार्केट देख ली, अब हम देखते हैं कि व्हाट इज योर स्पॉट मार्केट। Market where goods and services are exchanged on the spot, the price and the date is determined on the spot. For example, मैं मार्केट में गई, मुझे पेन चाहिए, मैंने वो पेन खरीदा, खरीदने के बाद वहां पे मार्केट में जो उसकी प्राइस थी उसी पे मैंने खरीदा और उसी पे मैं लेकर आ गई। तो वो जो आपकी डिलीवरी उसी वक्त ऑन द स्पॉट डिलीवरी थी, ऑन द स्पॉट पेमेंट थी, ऑन द स्पॉट आपकी प्राइस डिटरमिन थी, तो वो आपकी स्पॉट मार्केट होती है। आपके डिफरेंट स्पॉट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। इसका बेसिकली जो कॉन्सेप्ट था वो निकला था आपके इटली से। कुछ इटालियन आपके फार्मर्स थे स्पेन में और इटली में, जो कि डिफरेंट फार्मर्स जो है वो अपनी वीट और जो प्रोडक्ट्स थे वो लेकर आते थे मार्केट में। अब जिस प्राइस पे उनको मिलना चाहिए था, जिस वक्त उनके क्रॉप्स हार्वेस्ट होते थे, सबसे ज्यादा प्राइस उस वक्त डिफाइन हो रही होती थी, लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो कि उनकी फार्मर्स की प्राइसेस को डिक्रीज करके उनसे सस्ते में खरीदते थे और मार्केट में जाके महंगा बेच देते थे। उस टाइम में एक कॉन्सेप्ट डेवलप किया गया कि अगर ये चीज पहले से डिफाइन कर ले, प्री डिटरमिन प्राइस हो कि यार इतनी प्राइस के ऊपर। और क्या होता था कि बहुत सारा टाइम ऐसा भी होता था कि उनकी क्रॉप्स उनकी मर्जी की प्राइस नहीं मिलती थी, वो नहीं बेचते थे, तो उनकी क्रॉप्स ऐसे ही रह जाते थे। तो उसके लिए वो उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट क्या निकाला कि यहाँ से हम लोग उठाएंगे अपने क्रॉप्स, डिफाइन है कि जी इतने केजी ऑफ या इतना उसका वेट होगा, इतने वेट के क्रॉप्स मैं दूंगा इतनी प्राइस के अंदर। उन्होंने जो बायर्स थे उनके साथ एक सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। वो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, डिफाइंड कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसके अंदर ये लिखा गया कि जी इतना केजी ऑफ या इतने वेट का जो मुझे क्रॉप मिलेगा वो इतनी प्राइस के ऊपर मिलेगा और इस डेट पे मिलेगा। अब ये जो डेट पे मिले, इस डेट पे मिलेगा, इस डिटरमिन प्राइस के ऊपर होगा और इसके अंदर इस डेट पे मिलके और इतने वेट का होगा, इतनी क्वांटिटी होगी, ये सब डिफाइन फ्यूचर के लिए पहले से कर दिया जाता है। तो वो सब चीजें जो कि फ्यूचर में डिफाइन की गई हैं आज, दिस इज योर फ्यूचर मार्केट कॉन्ट्रैक्ट या फ्यूचर मार्केट ट्रांजैक्शन। तो जब हम स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट हैंड इन हैंड चलती है साथ साथ, स्पॉट मार्केट वो है कि मैंने आज कुछ खरीदा और वो मेरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई, और जो आपकी फ्यूचर मार्केट है इसका कॉन्सेप्ट आपके इटालियन एंड स्पेन मार्केट से निकला था, जहां पे ऑन द स्पॉट ट्रांजैक्शन जो है वो इतनी सक्सेसफुल नहीं होती थी, तो उन्होंने फ्यूचर मार्केट ट्रांजैक्शन जो है उनको डेवलप किया। आपकी जब भी हम स्टॉक एक्सचेंज में मैं गई, स्टॉक एक्सचेंज में मैंने एक खरीद लिया अपना कोई भी शेयर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन एबीसी कंपनी के शेयर्स खरीदे। शेयर्स खरीदने के लिए मेरा एक ऑनलाइन अकाउंट होगा, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, तो एक ऑनलाइन अकाउंट होगा, मेरे ब्रोकर का अकाउंट होगा, और बीच में एक इंटरमीडिएट एग्जिस्ट करती है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल डिपॉजिटरी कॉर्पोरेशन। वो सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी जो है वो सिंपल क्या करती है कि उसके पास दोनों के अकाउंट्स आएंगे, मेरा अकाउंट एज एन इन्वेस्टर और वो अकाउंट जो कि एज एन सेलर बायर, एंड वो जो कि सेलर है सेल करना चाहता है। तो मैं एज एन इन्वेस्टर कुछ इन्वेस्ट करना चाहती हूँ किसी शेयर में, तो उनको शेयर्स को खरीदूंगी, और वो कुछ एक सेलर है जो कि अपने शेयर्स बेचना चाहता है, तो वो सेलर का अकाउंट में जो शेयर्स पड़े हुए हैं वो शेयर्स बेच जाएंगे सीडीसी के पास। मैं जो पैसे पे करना चाह रही हूँ, जिस स्पॉट मार्केट प्राइस जो चल रही थी, प्राइस उस ऑन द स्पॉट मैंने डिसाइड किया जी मैंने बेचना है और मैंने खरीदना है, ये बेचे जा रहे हैं इस प्राइस 10 रुपीज के ऊपर मैंने खरीदना है। वो 10 रुपीज की मार्केट को लॉक कर दिया जाता है, उस प्राइस के ऊपर मार्केट में लॉक कर दिया जाता है। वो पैसे मुझे जितने पैसे उसके बनते हैं, जितने शेयर्स मैं खरीद रही हूँ, सपोज 100 शेयर्स खरीद रही हूँ 10 रुपीज के, दैट मीन 1000 रुपीज मेरे अकाउंट में से ट्रांसफर होंगे सीडीसी में। सीडीसी में ट्रांसफर वही जो मैंने 100 शेयर्स खरीदे हैं दूसरे जो सेलर है उसके अकाउंट से सीडीसी में जाएंगे, फिर एक्सचेंज होगा।
CDC क्या करेगा कि सेलर्स के अकाउंट से शेयर्स मेरे अकाउंट में ट्रांसफर करेगा और मेरे अकाउंट से पैसे 1000 रुपीज ट्रांसफर कर देगा सेलर के अकाउंट में। ये जो पूरी कंप्लीट ट्रांजैक्शन होती है ऑन द स्पॉट की, ऑन द स्पॉट सेलर से मैंने बात की, सेलर बेच रहा था, ऑन द स्पॉट मैंने उससे ले लिया, डिलीवरी ऑन द स्पॉट हो गई और ऑन द स्पॉट मेरी प्राइस डिटरमिन होगी। लेकिन नॉर्मली जो डिलीवरी होती है वो विद इन 2 डेज होती है, 1 to 2 डेज होते हैं, 1 to 2 वर्किंग डेज होते हैं, क्योंकि वो प्रोसीजर के यहाँ से उठा के दूसरे अकाउंट में डालना और वहां से पैसे इस तरफ पहुंचाना, ये जो पूरी ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है विद इन 2 डेज होती है। तो ऑन द स्पॉट भी आपके मिनिमम 2 डेज और मैक्सिमम 2 या 3 और मिनिमम 1 डे 2 डे के अंदर अंदर ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो जाती है। तो इसीलिए हम उसको स्पॉट मार्केट ट्रांजैक्शन कहते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं अपनी फ्यूचर मार्केट की, तो फ्यूचर मार्केट में थोड़ा सा डिफरेंस है। फ्यूचर मार्केट आपकी फ्यूचर डेट के ऊपर होता है। आप आज के दिन पे, टुडे, आज आप एक प्री डिटरमिन प्राइस बता दोगे जी इस प्राइस के ऊपर इतनी क्वांटिटी में और इस डेट के ऊपर मैं ये खरीद लूंगा या ये बेच दूंगा। तो वो दोनों के दोनों अपने एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंप्लीट चीजें डिफाइन होती हैं कि प्री डिटरमिन प्राइस होती है, प्री डिटरमिन डेट होती है, प्री डिटरमिन क्वांटिटी होती है और उसके ऊपर वो कर देते हैं। जब वो 6 महीने बाद मैं कहती हूँ कि मैं ये आपसे 10 पेन खरीद लूंगी या 10 चेयर्स खरीद लूंगी, वो 10 चेयर्स और 10 पेन मुझे मैं डिफाइन करती हूँ कि 6 महीने के बाद मुझे इस डेट के ऊपर इस प्राइस के ऊपर। अब इसका फायदा क्या होता है? लेट्स सपोज जो मैंने पेन खरीदना या चेयर खरीदना था 10 रुपए का खरीदना था, वो मुझे जिस दिन मैं खरीद रही हूँ 6 महीने बाद, हो सकता है उसकी प्राइस, क्योंकि इन्फ्लेशन होती है और टाइम के साथ साथ आपकी प्राइसेस चेंज होती है, तो उसके ऊपर हो सकता है वही पेन मुझे 12 रुपए का मिल रहा हो। तो मैं कितने में खरीद रही थी? 10 रुपए में। तो मैंने क्योंकि पहले से डिफाइन किया हुआ था 6 महीने बाद 10 रुपए में ही मैं वो प्राइस खरीदूंगी और जाके मार्केट में हो सकता है 12 का बेच के प्रॉफिट ले लूं। इसी तरह आपके एक और चीज होती है फायदा, बेनिफिट। इसमें मुझे क्या है? बेनिफिट ये है कि प्राइस कम प्राइस पे खरीद के ज्यादा प्राइस में बेच सकते हो, या बाद में जो चीज खरीदनी थी 6 महीने बाद मुझे चाहिए थी चीज, 6 महीने बाद ही मैं खरीदूंगी लेकिन अपनी मर्जी की प्राइस के ऊपर। इसलिए फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स किए जाते हैं। इसीलिए वो जो फार्मर्स थे उन्होंने यही कॉन्सेप्ट निकाला था कि वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स करते थे। लेकिन जो सेलर है उसको क्या बेनिफिट है? सेलर का बेनिफिट तब आता है, सेलर को ना कुछ कमीशन मिल रहा होता है इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर। एक बेनिफिट उसका ये है। दूसरा बेनिफिट उसको ये हो रहा होता है कि लेट्स सपोज अगर फ्यूचर में 6 महीने बाद 10 रुपए का मैंने पेन खरीदा था, अब मार्केट में उसकी प्राइस 8 रुपए हो गई है, लेकिन मैं तो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट में हूँ तो मुझे 10 रुपए में खरीदना ही पड़ेगा। तो जो 10 रुपए में मैं अपना पेन खरीदूंगी और जाके मैं मार्केट में दे आती हूँ 8 रुपए का बेचूं तो मुझे नुकसान है। तो इसमें सेलर का फायदा है कि सेलर मार्केट से उस वक्त 8 रुपए की चीज उठाएगा और 10 रुपए में मुझे बेच के बेनिफिट प्रॉफिट अर्न कर लेगा। ये आपकी स्पॉट मार्केट और फ्यूचर मार्केट के एग्जांपल्स हैं। नाउ लेट्स लुक एट पब्लिक मार्केट एंड प्राइवेट मार्केट। पब्लिक मार्केट आपकी मार्केट है, मार्केट फॉर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हेल्ड पब्लिकली, रिक्वायर टू गेट इनटू प्रॉपर फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इज लिक्विड। अब इसमें क्या है कि आपके पब्लिकली हेल्ड कोई भी चीजें हैं वो खरीदनी। लेट्स सपोज मैं जाती हूँ मार्केट में और मार्केट में जाने के बाद मैं कहती हूँ कि जी एक सर्टेन अमाउंट ऑफ क्लोथ्स मुझे चाहिए, ये थान कपड़ों के थान है जो कि मुझे 10 कपड़ों के थान मुझे चाहिए, मैं उसी वक्त पब्लिकली खरीद लेती हूँ। अगर मैंने वो खरीदना है पब्लिकली, ये मार्केट की ट्रांजैक्शन है, सिंपल सी मैंने कर ली। अब अगर मैं अपने साथ किसी पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जा रही हूँ और मुझे कोई बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ, ये तो एक छोटी सी एग्जांपल थी और छोटे सा वो होता, लेकिन अगर मुझे कोई बहुत इजी होता है, लेकिन अगर मैं किसी लार्ज कॉन्ट्रैक्ट में विद लार्ज अमाउंट ऑफ मनी के साथ जा रही हूँ, तो लार्ज अमाउंट ऑफ मनी विद लार्ज अमाउंट ऑफ क्वांटिटी, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट जो कि नॉर्मली आपका बिल ऑफ एक्सचेंजेस या इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में बहुत अच्छी एग्जाम्पल है जिसमें इम्पोर्ट एक्सचेंज में होते हैं, उसमें वो कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं और उसमें कहते हैं कि जी इस टाइम में हम लोग इस तरीके से ये एक्सचेंज करेंगे या ये चीज खरीद ली जाएगी। वो जो खरीद ली जाएगी उसमें कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है लेकिन लिक्विड होता है। ये चीज जाके आप कहते हो कि आज अगर मैं नहीं खरीदना चाहती, 6 महीने बाद मैंने चीज खरीदनी थी, मैं नहीं खरीद ली, वो जाके आप किसी और के आगे 2 बंदे से पैसे ले लो, वो बंदा आगे खुद अपना कंप्लीट कॉन्ट्रैक्ट कर देगा। या अगर आपने कोई पैसे नहीं दिए हुए तो आप कोई पैसे ना दो, अपना कॉन्ट्रैक्ट बेचा और वो आगे से 2 और पार्टीज उसमें कर सकती है, लेकिन इट रिक्वायर्स अ फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट एंड इज लिक्विड, क्योंकि आप इजीली इसको ट्रांसफर कर सकते हो। देन वी हैव अ प्राइवेट मार्केट, अ मार्केट फॉर प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर इनफॉर्मल इन नेचर एंड आर नॉट लिक्विड। इतने ज्यादा लिक्विड नहीं होते लेकिन इनफॉर्मल होते हैं। लेट्स सपोज मैं और मेरी फ्रेंड है, हम दोनों आपस में कोई चीज खरीदते हैं, मैं अपना मोबाइल बेच देती हूँ अपनी फ्रेंड को, वो मुझे पैसे दे देती, दिस इज अ प्राइवेट कॉन्ट्रैक्ट। नो इनफॉर्मल, कोई इनफॉर्मल उसमें मुझे कॉन्ट्रैक्ट में नहीं घुसना पड़ता। लेकिन जब हम कहते हैं ना कि लिक्विड नहीं है, तो वो इसलिए लिक्विड नहीं है कि
पहले मुझे ऐसा अपना मोबाइल बेचना चाहती हूँ मैं, लेकिन मुझे पहले ऐसा बंदा ढूंढना है कि जो कि मुझे मार्केट में मिल भी जाए कि जो मेरा मोबाइल खरीदना चाहता है, मेरी फ्रेंड हो गई मेरी, मैं ऐसे कोई फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती, इनफॉर्मल। तो मुझे 10 बंदे ढूंढने पड़ेंगे, बात करनी पड़ेगी, फिर जाके मुझे कोई बंदा मिलेगा और मैं बेचूंगी। लेकिन पब्लिक मार्केट में क्या होता है कि मार्केट एग्जिस्ट करती है, एक नहीं तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा नहीं तो तीसरे कॉन्ट्रैक्ट में आप जा सकते हो, एक से लेकर दूसरे में, क्योंकि एक वो प्रॉपर मार्केट के अंदर हो रहा होता है, एक फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है। फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो उसको थोड़ा लीगल बना देता है और लोग थोड़ा उसको सिक्योर्ड फॉर्म में जरा ज्यादा खरीदना चाहते हैं, इसलिए वो लिक्विड हो जाता है। Now let's look at other types of financial markets. We have a mortgage market and a consumer credit. Mortgage market क्या है? Market for mortgage loans that includes the house financing, business loan, etc. which require you to mortgage something in order to get a loan. आप pledge करते हो, कोई चीज गिरवी रखते हो। तो मुझे अगर घर चाहिए तो मैं अपनी कोई जमीन या वही घर जो मैं खरीद रही हूँ वो घर में गिरवी रखूंगी बैंक के पास और उसको रेंट पे चढ़ा के उससे जो पैसे आते जाएंगे वो विद टाइम अपनी पेमेंट करती रहूंगी। सिमिलरली जब बिजनेस लोन लिए जाते हैं तो बिजनेस अपनी बिल्डिंग, अपनी लैंड कुछ ना कुछ मॉर्गेज करता है अपने बैंक के पास, तो उसको लोन मिलते हैं। ऐसे जो है ये मॉर्गेज लोन्स की एग्जांपल्स हैं। ये मॉर्गेज मार्केट अब तब एग्जिस्ट करती है आपके विद इन अ बैंक और विद इन अ कैपिटल मार्केट आपकी एग्जिस्ट करती है। आपकी मॉर्गेज मार्केट जो बैंक जो है आपको लोन्स देते हैं, दैट इज योर मॉर्गेज लोन्स। इसके अलावा हमारे पास कंज्यूमर क्रेडिट होता है। कंज्यूमर क्रेडिट हमारा दैट इंक्लूड्स कंज्यूमर लोन्स इंक्लूडिंग द स्टूडेंट लोन, शॉर्ट टर्म लोन्स, कार फाइनेंसिंग, क्रेडिट कार्ड, इन सब की एग्जाम्पल, ये बेस्ट एग्जाम्पल आपके कंज्यूमर क्रेडिट के, जिसके अंदर सिंपल आपका एक इंडिविजुअल कंज्यूमर होता है, वो अपनी मर्जी से कोई भी चीज लोन लेना चाहता है या किसी कॉन्ट्रैक्ट में जाना चाहता है तो वो सिंपल किसी और से या बैंक से जो भी लोन लेगा वो आपका कंज्यूमर लोन होगा। That was all about your types of financial markets के types of financial markets में क्या क्या included होता है। इसके अलावा भी financial markets होती हैं, अगर if you want to define और इसके अंदर कोई और चीज़ें include करना चाहें तो आप include कर सकते हैं या extra study के लिए कुछ चीज़ें include कर सकते हैं जो कि with time जो है थोड़ा थोड़ा चेंज होता जा रहा है विद इन द मार्केट। या आप फाइनेंशियल मार्केट या बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करते हो तो बिजनेस मार्केट के अंदर बहुत सारी टाइप्स ऑफ मार्केट्स इंक्लूड होती जा रही हैं। ये बात मैंने पहले भी बताई कि किस तरीके से आप अपनी जितनी भी फाइनेंशियल मार्केट्स हैं उन सबको इंक्लूड करते हो, ओवरलैप करते हो या इंक्लूड करते हो एक मार्केट के अंदर। तो आपने देखा होगा जितनी पब्लिक मार्केट, प्राइवेट मार्केट, मॉर्गेज लोन, ये सब के सब एक ओवरलैप कर रही हैं आपस में विद द कैपिटल मार्केट। आपकी सेकेंडरी मार्केट आपकी कैपिटल मार्केट भी है, आपकी प्राइमरी मार्केट आपकी कैपिटल मार्केट भी है। आपकी जितनी ये सारी मार्केट्स हैं वो सब की सब डील करिए विद योर फाइनेंशियल एसेट्स, एंड फाइनेंशियल एसेट से डील करने वाली हर मार्केट इज योर फाइनेंशियल एसेट मार्केट। सो ऑल दीज मार्केट्स आर ओवरलैपिंग। नाउ लेट्स लुक एट अनदर टॉपिक, दैट इज हाउ इज कैपिटल ट्रांसफर बिटवीन सेवर्स एंड बोरोअर्स। क्योंकि हम इतनी देर से ये बात कर रहे थे कि फाइनेंशियल मार्केट्स कैसे एग्जिस्ट करती है, तो फाइनेंशियल मार्केट्स आपकी फाइनेंशियल एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करती है। फाइनेंशियल एनवायरनमेंट के अंदर आपके कुछ बोरोअर्स, आपके सेवर्स होते हैं जो कि डिफाइन करते हैं आपके फाइनेंशियल मार्केट्स को, जो कि मैंने सबसे फर्स्ट स्लाइड के अंदर डिफाइन किया है। लेट्स लुक एट द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसफर। द फर्स्ट वन इज योर डायरेक्ट ट्रांसफर, ट्रांसफर थ्रू योर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हाउस एंड ट्रांसफर थ्रू योर फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज। ओके, फर्स्ट वन इज योर ट्रांसफरिंग योर कैपिटल थ्रू डायरेक्ट ट्रांसफर। डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ फंड्स आपके किस तरीके से होते हैं? वी हैव दिस सेवर, ये हमारा एक सेवर है। We have a firm. A firm वो है जिसको need of funds, that is your borrower. And we have saver who have surplus of funds. आपकी सेवर कैश देता है आपकी फर्म को और आपकी फर्म जो है वो सिक्योरिटीज दे देती है आपके सेवर्स को। सो दिस इज योर डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ कैपिटल बिटवीन योर सेवर्स एंड बोरोअर्स। तो फर्म्स आपकी क्या है? दीज फर्म्स आर योर बोरोअर्स, ये बोरोअर्स, और ये आपके क्या है? सेवर्स। सेवर्स आपकी अमाउंट ये कैश दे देता है आपकी फर्म्स को और इन रिटर्न क्या गेन करता है? आपकी सिक्योरिटीज। लेकिन इसके अलावा भी एक और चीज आती है इसके बीच में। इनको क्या फायदा है कि ये अपनी सारी की सारी सेविंग सिक्योरिटीज में डाल दें और सिक्योरिटीज खरीद लें। ये फर्म आपको एक और चीज देती है, दैट इज योर रिटर्न, एंड दैट रिटर्न इज मोस्टली इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, और वो डिविडेंड इनके लिए क्या है? प्रॉफिट। So savers, by investing their savings or cash amount in the firm's securities, they get profits and return in return of that investment they get profit in the form of return या dividend.
ये एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ फंड्स है. देन वी हैव अनदर ट्रांसफर ऑफ फंड्स, इनडायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ फंड्स, इनडायरेक्ट ट्रांसफर यूजिंग योर इन्वेस्टमेंट banker. Now consider this saver as you yourself. So let's suppose if you are this saver and you are transferring your capital through your investment banker. Now let's look at this thing ki who is your investment banker. Investment banker basically is your financial intermediary who exists to help the savers to get their funds efficiently allocated to the borrowers, और borrowers से कुछ securities लेके आपके savers को दे देता है. अब इन्वेस्टमेंट बैंकर का बेसिक यहाँ पे कंप्लीट रोल डिफाइंड होता है एज अ फाइनेंशियल इंटरमीडिएट. पर इसमें इन्वेस्टमेंट बैंकर को फायदा क्या है? इन्वेस्टमेंट बैंकर को फायदा ये होता है कि वो कुछ अमाउंट ऑफ कमीशन ले रहा होता है आपकी फर्म से, आपके बोरर से और आपके सेवर से. नाउ लेट्स लुक एट दिस कि हाउ इट इज बीइंग डन. आपके सेवर्स फंड्स दे देते हैं आपके इन्वेस्टमेंट बैंकर को. इन्वेस्टमेंट बैंकर क्या करता है? वो फंड्स दे देता है आपकी फर्म्स को, फर्म से ले लेता है सिक्योरिटीज और वो सिक्योरिटीज दे देता है आपके सेवर्स को. Now how this whole process exists? आपकी जो firms हैं क्योंकि they need funds, they are the borrowers. What they do is they borrow their amounts by issuing their securities. They issue their securities और कुछ securities तो पहले वो जनरल पब्लिक को खुद अपना एक certain office define करके securities issue कर देती है. उसके बाद वो क्या करते हैं कि अपने इन्वेस्टमेंट बैंकर के साथ उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जी जितनी सिक्योरिटीज मेरी बिकनी, ठीक है, जो बच गई वो सारी सिक्योरिटीज आपका इन्वेस्टमेंट बैंकर उस सर्टेन प्राइस के ऊपर बेचेगा. इन्वेस्टमेंट बैंकर जो है इन कॉन्ट्रैक्ट चला जाता है. इस कॉन्ट्रैक्ट के रिटर्न में वो क्या करता है? आपकी फर्म से कुछ कमीशन लेता है. जब सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट बैंकर के पास सिक्योरिटीज फर्म को उसने फंड दिए और वहां से उनसे सिक्योरिटीज खरीद ली. ये सिक्योरिटीज क्या करता है? यहाँ पे ये जो हमारी ये सिक्योरिटी फर्म है, फर्म्स ने इसको ये सिक्योरिटीज दे दी. इन सिक्योरिटीज को जाके इसने सेवर्स को दे दिया. सेवर्स से इन्होंने फंड्स लिए और ये फंड्स उन्होंने वापस दे दिए सिक्योरिटीज को. इसमें इसको फायदा क्या है? इधर से भी कमीशन लेगा और ये सेवर से भी कुछ कमीशन लेता है. बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकर इज इन पाकिस्तान इज योर नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, एनआईटी पाकिस्तान में एग्जिस्ट करता है. वो भी यही करते हैं कि वो अपने कुछ यूनिट्स भी एग्जिस्ट करते हैं, वो एज अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करते हैं. इसके अलावा आपके कुछ इन्वेस्टमेंट बैंकर, आपके बैंक्स, आपके जितने भी बैंक्स हैं वो एज फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बैंकर भी काम कर रहे होते हैं. वो आपके सेवर से फंड्स लेते हैं, जाके फर्म्स में एग्जिस्ट कर देते हैं, फर्म्स के लिए उनकी सिक्योरिटीज बेचते हैं. फिर इन्वेस्टमेंट बैंकर का कुछ थोड़ा सा एक सर्टन रोल है, वो देख लेते हैं कि हाउ डू इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हेल्प द फर्म्स इन इशूइंग देयर सिक्योरिटीज. देयर फर्स्ट रोल इज एडवाइजिंग द फर्म. फर्म्स को एडवाइस कर रहे होते हैं कि अपनी सिक्योरिटीज इस तरीके से बनाएं, इस प्राइस पे रखें और इस जगह पे बेचें और इस टाइम में बेचें. दूसरा वो उनको ये कर रहे होते हैं कि वो अंडर राइटिंग में हेल्प करते हैं कि अंडर राइटिंग द फर्म को ये जो प्रोसेस होता है कि फर्म ने अपने इश्यूज की सिक्योरिटीज किस तरीके से 2 इंग्लिश एंड 1 उर्दू अखबार में उन्होंने दे दिया और लोग जो है वो आकर उनसे सिक्योरिटीज खरीदने एक सर्टन ऑफिस के अंदर, एक सर्टन बैंक से वो खरीदना शुरू हो गए. जितने सिक्योरिटीज बिकी दैट्स इट. इसके अलावा जो सिक्योरिटीज बच जाती है, लेट्स सपोज मैंने 100,000 शेयर्स एज फर्म मैंने बेचने थे. 100,000 में से मेरे 60,000 शेयर्स बिक गए, 30,000 शेयर्स बचते हैं. वो जो 30,000 शेयर्स ये अंडर राइट किया गया था कि जितनी भी सिक्योरिटीज रह जाएंगी इस सर्टन डेट के बाद वो सारी की सारी सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट बैंकर बेचेगा और इन्वेस्टमेंट बैंकर इसके रिटर्न में उनसे कुछ कमीशन ले रहा होता है. वो क्या करते हैं? वो जाके अपने उनकी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बैंकर के ऊपर लोग ज्यादा ट्रस्ट करते हैं कि बैंक है एक सर्टन जो कि स्पेसिफिक ये काम कर रहा है, प्लस दे नो वेल कि कहाँ इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए कहाँ नहीं होनी चाहिए. तो आपकी हेल्प करता है अंडर राइट करने में. इशू के ऑर्गेनाइजेशन को कहता है कि अंडर राइट करके मैं बेचूंगा. दूसरा काम वो ये करता है कि डिस्ट्रीब्यूटिंग द इशू जितने भी आपकी सिक्योरिटीज इशू करनी है उनको डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से करता है कि सब लोग इन पे ट्रस्ट करते हैं और इनके थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं कि दे नो बेटर कि कहाँ पे इनकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा बेहतर तरीके से हो सकती है. वो इन्वेस्टमेंट ये कर देते हैं अपनी सिक्योरिटीज की सर्टेन इन्वेस्टमेंट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपनी सिक्योरिटीज को, जाके जनरल पब्लिक कुछ सिक्योरिटीज को खरीद लेते हैं और बाकी की जनरल पब्लिक के अंदर जनरल पब्लिक को दे देते हैं और उसी प्राइस के ऊपर जितने भी आपकी कंपनी ने कहा होता है. तो वो आपकी हेल्प करता है आपके डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए. और मैं अगर खरीदना चाहूँ किसी से तो मैं डेफिनेटली वहां जाऊंगी कि मुझे नहीं पता कि मुझे कौन सी कंपनीज की खरीदनी चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंकर कहता है ये कंपनी, क्योंकि उसने अंडर राइट किया ये कंपनी अच्छी है इसी में इन्वेस्टमेंट कर ले, तो मुझे भी एडवाइस करेगा कि इस बेहतर कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे. तो आपकी फर्म को हेल्प कर रहा होता है आपके शेयर्स को बेचने में. देन वो क्या करता है? इनहेंसिंग द क्रेडिबिलिटी. डेफिनेटली मुझे नहीं पता कि मुझे इस फर्म नई फर्म में इसकी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, शेयर्स खरीदने चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए, बट अगर इन्वेस्टमेंट बैंकर कहता है कि आप अपने फंड्स दें, योर फंड्स आर सिक्योर, वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट योर फंड टू दो सिक्योरिटीज, तो और आपको वो सिक्योरिटीज मिलेंगी तो मैं उसमें
इन्वेस्टमेंट करना चाहूंगी तो उसकी क्रेडिबिलिटी भी इंक्रीज कर रहा होता है। पर इसमें एक रिस्क इन्वॉल्व होता है कि उसने फंड्स लिए, सिक्योरिटीज ली कंपनी से और जाके उसने जनरल पब्लिक को देने। अगर वो पूरी की पूरी कंप्लीट सिक्योरिटीज बेच ना सका जितने की उसने फर्म से खरीद ली है, तो उसको कहीं ना कहीं एक स्मॉल अमाउंट ऑफ रिस्क जो है थोड़े टाइम के लिए एग्जिस्ट कर रहा होता है फॉर द इन्वेस्टमेंट बैंकर। देन वी हैव थर्ड फॉर्म ऑफ ट्रांसफरिंग कैपिटल, that is indirect transfer through your financial intermediary. Now we have saver, we have this saver, we have a firm. Saver have surplus of funds and firms are the borrowers who need funds. सो आपकी जितनी भी ऑर्गेनाइज फर्म्स हैं दे आर नॉर्मली योर बोरोअर्स। अब ये सेवर क्या करेगा, और ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरी एग्जिस्ट आर नॉर्मली योर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये एज एन इंटरमीडियरी एक्ट करी होती है, हेल्प करी होती है आपके सेवर्स और फर्म्स को एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ योर फंड्स। इससे क्या होगा कि सेवर जो है वो अपने फंड्स देगा फाइनेंशियल इंटरमीडियरी को, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी वो फंड्स देके फर्म को देगी, फर्म से फर्म की सिक्योरिटीज खरीदेगी और आपकी इंटरमीडियरी की सिक्योरिटीज, खुद की सिक्योरिटीज इसको दे देगी। अब इसमें क्या हो रहा है, ये आपके सेवर्स जो हैं उन्होंने फर्म फाइनेंशियल इंटरमीडियरी को कुछ फंड्स दिए, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी ने अपनी इंटरमीडियरी की अपनी सिक्योरिटीज सेवर्स को दे दी। अपनी सिक्योरिटीज आर नॉर्मली इन द फॉर्म ऑफ यूनिट्स। आपके जैसे नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की मैंने पहले बात की थी, तो नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट के अपने यूनिट्स हैं, वो आपके अपनी कुछ सर्टेन प्राइस के ऊपर सेवर्स को दे देगा और बता देगा कि अगर आप 10,000, 20,000, 1 लाख की इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इतना परसेंटेज रिटर्न आएगा। तो ये फाइनेंशियल इंटरमीडियरी इसको एक परसेंटेज रिटर्न दे रहा होता है जो कि डिफाइंड होता है। तो सेवर्स फाइनेंशियल इंटरमीडियरी को फंड देता है, सेवर जो है फंड फाइनेंशियल इंटरमीडियरी उठा के वो यूनिट्स, अपने यूनिट्स जो है वो एज अ सिक्योरिटी दे देता है आपके सेवर्स को। फिर फाइनेंशियल इंटरमीडियरी जो फंड्स उसने इन सेवर से खरीदे हैं वो फंड्स वो उठा के ये वाले फंड्स फर्म्स की सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करता है और फर्म्स की सिक्योरिटीज अपने पास रख लेता है। तो क्या करते हैं कि आपके सेवर्स से वो कुछ पैसे लेते हैं और उनको अपनी सिक्योरिटीज दे देते हैं। अपनी जो पैसे लिए उनको जाके डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, उन कंपनीज में जो इन्वेस्टमेंट की होती है उस कंपनी की इन्वेस्टमेंट से वो कुछ रिटर्न अर्न कर रहे होते हैं। जब भी वो कोई रिटर्न, मैंने डिफरेंट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट की है, मैं एज ए फाइनेंशियल इंटरमीडियरी मैंने फंड्स ले लिए, उनको अपने यूनिट्स दे दिए। अपने यूनिट्स देने के बाद मैं आगे जा रही हूँ अपने फाइनेंस फर्म्स में, डिफरेंट फर्म्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। डिफरेंट फर्म्स की सिक्योरिटीज मैंने खरीद ली और उनको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ उनको फंड्स दे दिए, जितने की भी सिक्योरिटीज खरीदी। उनका काम सिर्फ फंड्स लेना था। अब वो फर्म्स की सिक्योरिटीज मेरे पास खरीदने में शेयर होल्डर हूँ, शेयर होल्डर को कुछ रिटर्न मिलता है। जब वो रिटर्न आएगा एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, तो वो जो रिटर्न आएगा वो एक सर्टेन परसेंटेज होगी। लेट्स सपोज मैंने 100,000 इन्वेस्टमेंट की थी और 10% मुझे रिटर्न आया और मैंने अपने ऑलरेडी सेवर को ये कहा हुआ है कि मैं आपको 2% रिटर्न मैं आपको दूंगा। तो जितना भी मेरे पास आई है टोटल कैपिटल की 2% मैं उठा के सेवर को दे दूंगा, बाकी रिमेनिंग 8% मेरा अपना प्रॉफिट है। दिस इज हाउ बैंक्स यूज योर डिपॉजिट्स। फिक्स्ड एसेट्स अगर आप उनके पास कराते हो तो फिक्स्ड एसेट्स 6 महीने के लिए आप निकाल नहीं सकते, तो वो 6 महीने का लेट्स सपोज फिक्स्ड एसेट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हमने खरीदे, वो अमाउंट जाके वो कहीं बेच देते हैं। यहाँ क्या करते हैं, वो अमाउंट जाके किसी को लोन दे देते हैं और उस लोन के ऊपर वो इंटरेस्ट अर्न कर रहे होते हैं। उस इंटरेस्ट में से कुछ अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट आपको एट द एंड ऑफ दिस 6 मंथ्स अपने डिपॉजिट के ऊपर रिटर्न दे देते हैं, बाकी रिटर्न अपना प्रॉफिट अर्न करते हैं। सिमिलरली अगर उन्होंने पैसे किसी सिक्योरिटीज में खरीदे तो बेचे हैं तो डाले हैं, तो सिक्योरिटीज से जो उनके पास पैसे आएंगे उनमें से कुछ अमाउंट आपको दे देंगे, बाकी सारा अपना प्रॉफिट होता है। दिस इज द बेनिफिट टू द फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। This is one of the efficient way of transferring your capital from savers to your borrowers, and efficient allocation of resources to the ultimate users, which is basically the basically where financial markets and financial institutions help in the financial environment and making it efficient. Then we have different types of financial intermediaries. We have commercial banks. Commercial bank की मैंने आपको एग्जांपल बताई कि फिक्स्ड एसेट लिया, आपको सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट दिया और आगे जाके बेच दिया। आपकी लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज है। लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती हैं, आपसे 6-6 महीने बाद या साल बाद आपसे कुछ अमाउंट, सर्टेन अमाउंट आपसे ले रही होती है। वो सर्टेन अमाउंट जब आपसे ले लेते हैं तो वो क्या करते हैं कि एक सर्टेन ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी उन्होंने इन्वेस्ट की, ले लिए डिफरेंट लोगों से। 10 लोगों से 25-25 हजार रुपया लिया, जो उनके पास 2,50,000 रुपया आया है, उस सब अमाउंट को वो जाके इन्वेस्ट कर देते हैं डिफरेंट कंपनीज में, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, डिफरेंट लोगों को लोन्स देके।
उस लोन्स प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टमेंट में से वो कुछ रिटर्न लेते हैं। वो जो रिटर्न आता है वो अपने पास वो एज प्रॉफिट रखते रहते हैं, अपने पास ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल वो उनका डबल होता रहता है। जिस दिन जो भी बंदा आपसे, अगर लाइफ इंश्योरेंस है तो या एक्सीडेंट की इंश्योरेंस है, किसी का एक्सीडेंट हुआ, वो इंश्योरेंस क्लेम करेगा तो उस अमाउंट में से वो कुछ अमाउंट उसको थोड़ी ज्यादा करके, तो कैसे आपके पास लाइफ इंश्योरेंस में ज्यादा अमाउंट हो जाती है, 25,000 आपने हर साल दे रहे हो, आपके ज्यादा कैसे आती है, वो 25,000 के साथ एक्यूमुलेट होने के अलावा और ओवर जो अमाउंट दे रही होती है कि आपके फंड्स उन्होंने इन्वेस्ट किए होते हैं। दिस इज हाउ लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज डू, एंड दिस इज द सेम वे वेयर पेंशन फंड्स डू। पेंशन फंड्स या डिफरेंट फाइनेंस कंपनीज हैं, वो क्या करती हैं, आपसे पैसे लेके इन्वेस्ट करती हैं डिफरेंट कंपनीज में और आपके उनसे रिटर्न अर्न करती हैं, कुछ आपको देती थी, बाकी अपना प्रॉफिट रख लेती हैं। आपके जो म्यूचुअल फंड्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स नाम से ही पता है, म्यूचुअल फंड्स वो क्या करते हैं, वो आपको अलाउ करते हैं, आपको हेल्प करते हैं कि आप डिफरेंट किस्म की इन्वेस्टमेंट कर सकें। आप छोटी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर शॉर्ट टाइम पीरियड, छोटी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टाइम पीरियड, लॉन्ग टर्म लार्ज अमाउंट फॉर शॉर्ट टर्म एंड लार्ज अमाउंट फॉर लॉन्ग टर्म, मतलब डिफरेंट उनके पास डिफरेंट प्रोसीजर्स होते हैं। वो आपके फंड्स को म्यूचुअली इकट्ठा करती हैं, इकट्ठा करके जाके इन्वेस्ट कर देती हैं डिफरेंट सिक्योरिटीज डिफरेंट फर्म्स में, और आपसे कुछ म्यूचुअल फंड यूनिट्स ले लेते हैं। अब मैं एज म्यूचुअल फंड आपको कुछ यूनिट्स दे दूंगी, आपके फंड्स लिए, उनको म्यूचुअली ढेर सारे लोगों के फंड्स को म्यूचुअली एग्जिस्ट किया, कंप्लीट किया, और जाके मैंने उनकी इन्वेस्टमेंट कर दी। उन इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न आया, आपको पहले से म्यूचुअल फंड्स के यूनिट्स के ऊपर जितना परसेंटेज दिया हुआ है आपको उतनी रिटर्न देगी। अब म्यूचुअल फंड्स के लिए फायदा ये होता है कि वो एक तो आपको डिफरेंट ब्रैकेट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट देता है कि ये तरीके इन्वेस्टमेंट के आप कर सकते हैं, प्लस वो आपको कुछ सर्टन रिटर्न दे रहा होता है, प्लस आपकी सिक्योरिटी होती है कि जो भी इन्वेस्टमेंट हम करेंगे वो किसी एक जगह इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा होता, वो ज्यादा सारी पोर्टफोलियो बना के डिफरेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करता है, तो उसका जो रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट है वो थोड़ा लो हो जाता है और आपकी इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी सिक्योर होती है। Now these are all the types of your financial intermediaries. We have more financial intermediaries which will be considering your first assignment as assignment number 1, finding out the role of financial markets and the financial intermediaries. That will be uploaded soon. Now let's look at a summary of your whole today's third lecture. That is, we define what is a market, the venue where goods and services exchange between your buyers and sellers. Then we define a financial market where the transaction of financial assets occur between your savers and your borrowers. And the basic role of financial market is efficient allocation of your resources to the ultimate users. Then we define different 6 groups of financial markets. For physical and financial asset market, physical asset market where transaction of physical assets take place, and financial asset market where financial asset and financial instruments are being exchanged between sellers and borrowers. Then we have money versus capital market. Money market is for short-term highly liquid assets. Capital market is for long-term financial instruments. We have primary market and secondary market. Primary market for raising new capital, and secondary market is for already existing outstanding shares, and primary market is for issuing your new shares. Then we have spot versus future market. Spot market is for on the spot transactions, for on the spot price and on the spot delivery, and future market is for future transactions of future on the future delivery date, predetermined future price and predetermined quantity. Then we have public versus private. Public is includes the formal and liquid contract, while private does not require any formal contract. It has an informal contract, informal transactions hoti hai, which is not very liquid. And then we have mortgage versus consumer credit. Mortgage loans and consumer credit are the best example for a bank, which we consider as a market. Financial market जहाँ पे mortgage loans दिए जाते हैं और consumer credit में आपके consumer loans दिए जाते हैं. Then we have different types of capital transfer. क्योंकि हमने फाइनेंशियल मार्केट्स डिफाइन कर ली, तो फाइनेंशियल मार्केट के अंदर कैपिटल ट्रांसफर कैसे होता है, सो दैट इज थ्रू योर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज. 3 टाइप्स ऑफ डायरेक्ट ट्रांसफर, दैट इज फ्रॉम सेवर्स टू द डायरेक्टली टू द बोरोवर्स विदाउट एनी इंटरमीडियरी एंड गेटिंग अ रिटर्न, सेवर्स गेटिंग अ रिटर्न फॉर देयर इन्वेस्टमेंट. देन वी हैव ट्रांसफर थ्रू योर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हाउस. इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हाउस में आपके इन्वेस्टमेंट जितनी भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आप फर्म सारी की सारी अपनी फंड्स फाइनेंशियल इंटरमीडियरी को दे दिए. फाइनेंशियल इंटरमीडियरी वो आपकी फर्म्स या आपके बोरोवर्स को देते हैं, बोरोवर्स से उनकी सिक्योरिटीज खरीद के आपको दे देते हैं और बीच में अपना कुछ कमीशन अर्न करते हैं. देन वी हैव इनडायरेक्ट ट्रांसफर थ्रू योर फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज. Other financial intermediaries are financial institutions. These financial institutions help in
transferring your capital from, for example, they take your funds from you and give you your own securities, your intermediaries securities, and then transfer that capital to the borrowers, which are firms. Transfer that capital to the borrowers, borrowers or the firms which need the funds. They give those funds to the firms or the borrowers, and then get in return, what in return they get is your firm's securities. They do investment, आपके फंड्स लेते हैं और जाके इन्वेस्ट कर देते हैं फर्म्स की सिक्योरिटीज में, और उनसे सिक्योरिटीज खरीद लेते हैं और आपको अपनी सिक्योरिटीज दे देते हैं. उनसे उनको प्रॉफिट अर्न होता है. जो भी प्रॉफिट अर्न होता है उसका कुछ शेयर आपको और बाकी अपना एज प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं. इसी तरह इन्हीं फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज की कुछ टाइप्स थी, जिसके अंदर हमने ये डिफाइन किया कि कमर्शियल बैंक्स कैसे फाइनेंशियल इंटरमीडिएरी एग्जिस्ट करते हैं. कमर्शियल बैंक्स, पेंशन फंड्स, योर फाइनेंस कंपनीज, योर लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज एंड योर म्यूचुअल फंड्स, एंड मेनी अदर एग्जांपल्स ऑफ फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज आर देयर. दैट इज योर असाइनमेंट. And this was all about your third lecture. We'll be moving on to your fourth lecture, inshallah, for some other time, and that would be complete your first chapter. This is your first chapter completed. We'll be moving on to another topic of time value of money. That is your second chapter, and we'll be discussing that second chapter in your fourth lecture. Thank you.